Mechanical energy. Mechanical energy basically is the combination of potential energy and kinetic energy. किसका कॉम्बिनेशन है ये? किसका कॉम्बिनेशन है ये? Potential पोटेंशियल and एनर्जी kinetic. का एंड काइनेटिक एनर्जी का. Okay, this is the combination of this. So basically, if I say here, mechanical energy is potential energy plus kinetic energy. Please make a note of this. Mechanical energy किसका combination है? Potential Potential energy plus का kinetic. और kinetic energy का, right? Yeah. Okay. मैकेनिकल एनर्जी अगर आप देखो तो आई कैन राइट डाउन दिस वन एज mgh and I can write down this one as half mv square. Can you see that? Yeah. Now, according to the law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, law of conservation of energy, total energy, total initial energy must be equals to total final energy. Must be equals to total Final. energy. That means mechanical energy at any point, mechanical energy at point B or sorry, at A will be equals to sorry, mechanical energy at point Yeah. B. इस चीज को याद कर लो आप. Just give a second. I will take water. Okay. तुम थक गए हो. इसको नोट करो. I will take the water. Okay. Give me a second. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Once. Yeah. Okay. So I told you what? That mechanical energy at point A will be equal to mechanical energy at point B. मैंने ये आपको कहानी बताई, राइट? Yeah. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है, करेक्ट? Yeah. अब चलो एक्चुअल देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम लोग. दिस इज अ टावर. व्हाट इज दिस? टावर. Yeah. This is a ground. Can you see that? Yeah. Right now, at the top of it, I have a ball. I have a ball, right? And we are doing free fall case. What we are doing? Free fall case. ऊपर से कोई प्रेशर, कोई झटका कुछ नहीं है. नॉर्मली फ्री फॉल होगा, राइट? So we consider the mass of ball is m. What we have considered?
Mass of ball is M. Mass of ball is m. The height from the ground is h. What is the height from the ground? h. H. Now बहुत important बात है, this is आप consider कर लो a, this point I will consider as a b, this point I will consider as a c. नहीं c वहां क्यों, c एक बार रुक जाओ, ये कुछ b point ले लिया मैंने यहाँ से, c point I will consider as the middle और d point in the last. Clear? Yeah. अभी मेरी बात सुनो. At the point A, क्या मेरा बॉल मोशन में है? Yeah. या बॉल मोशन में है मेरा? नहीं नहीं नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ लिखूंगा सारी चीजें जो भी है मैं यहाँ लिखूंगा, ध्यान देना. आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स. At point A, Yeah. is my ball in motion? No. Ball is in Rest. rest. At some height. At some height. ये किसी height पर है, correct? Yeah. So point A पर what will be the kinetic energy at the point A? Tell me. 0. Because there is no velocity, so it will be 0. कोई दिक्कत है? No. What will be the potential energy? What will be the potential? Energy will be the highest. So what will be mgh? MGH. So total mechanical energy at point A कितना हो जाएगा बताओ? Kinetic plus potential. Kinetic 0 है, potential mgh है, so it will become mgh. कोई प्रॉब्लम है? No. Okay. देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है. मैं पूरी चीज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आएंगे यहाँ पे. तो देखो एट द पॉइंट ए हमको मैग्नेटिक एनर्जी निकालना सीख लिया हमने. एट द पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा आपने, राइट? Yeah. एंड एट द पॉइंट ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना सीखा आपने. एम आई राइट? एम आई राइट? Yeah. Yeah. नाउ अच्छा ये बात भी आपने सीखी कि पॉइंट ए पर बॉल रेस्ट में होगा, सो देयर इज नो मोशन, हाइट h पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां होगा, राइट? क्लियर है? Yeah. अब मानते हैं कि दिस डिस्टेंस इज x. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? x. x डिस्टेंस ट्रेवल करता जब है, राइट? Yeah. जब बॉल ये हमारा यहाँ आ गया, आई एम टॉकिंग एट द पॉइंट B. At point B. Yeah. So ball is in motion or ball is in rest now? At point B. Ball is in motion. Yeah. For some seconds ही रहेगा. It's not going to for 1 hour. For point किसी point पर वो कुछ seconds के लिए रहेगा, right? आप एक काम Yeah. करो ना, आप अपना इरेजर लो और पेन का कैप है? Do you have cap of the pen? Yeah. उसको थोड़ा हाथ में ऊपर उठाओ और छोड़ दो ऊपर से. क्या करूं? हाथ में कैप को उठाओ ऊपर और ऊपर से छोड़ दो कैप को. 1 second में पेन कर लिया. हाँ. छोड़ दो. Done. क्या हुआ जब आप ऊपर से छोड़े तो कहीं ना किसी पॉइंट पर वो जल्दी से नीचे गिरा. Yeah. तो अब ऊपर पे आपने हाथ में अच्छा ऊपर हाथ में पकड़ के रखे हो. Yeah. Take the cap in your hand and move your hand up. Move your hand up. कर लिया हैंड ऊपर? हाँ. क्या आपका कैप मोशन में है? Yeah. आपने अपनी हैंड में रखा है, कैप मोशन में कैसे? नहीं, कैप मोशन में नहीं, हमारे हैंड. तो कैप मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0. Yeah. पोटेंशियल एनर्जी mgh. So Yeah. total mechanical energy is what? mgh हो जाएगा. Yeah. अच्छा जब आप छोड़े, आप छोड़ दो कैप को, छोड़ दो. हाँ छोड़ दिया.
So your cap is moving very fast towards downward. Yeah. तो कुछ पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, सी पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, नीचे जैसे जाएगा उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, राइट? Yeah. सो वी विल सी व्हाट वेलोसिटी कितनी होगी, क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, हम वो सारी चीज अभी देखेंगे। तो सारी पॉइंट सोचने हैं यहाँ पे, ये नहीं कि बस मैकेनिकल एनर्जी सोच के छोड़ देंगे, नहीं। वेलोसिटी क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, हमको सब बारे में सोचना है। अंडरस्टूड? Yeah. So now at the point B, ball is in motion. At the point B, ball is in motion, right? Yeah. So motion में है. So can you tell me what would be the velocity at point B? Can you tell me what would be the velocity at? मैं VB लिख रहा हूँ क्यों? Velocity at point B. Understand? Yeah. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. Velocity at point B. कैसे निकालोगे velocity at point B? बताओ. How you will find this? बताओ. सोचो जरा, दिमाग पे जोर लगाओ. आपने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Can you hear me? Yeah. Yeah. I'm going to use my green pen. What is the velocity here? 0. Yeah. What is the velocity here? I don't know. So can I consider as V? Can I consider as V? Yeah. भाई V या VB मान लो ना, कोई बात नहीं, VB मान लो, चलो ठीक है, मान लिया. How much distance is traveled? X distance, correct? आपको मैंने कुछ इक्वेशंस पढ़ाए थे. This equation, Yeah. this equation, and this equation. इसमें से देखो तो कौन सा इक्वेशन यूज करने के लायक है. टाइम गिवन है क्या हमको यहाँ पे? डू वी हैव टाइम? Yeah. No. दो, तो दोनों इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगे. कौन सा बचेगा? कौन सा बचेगा? दिस इक्वेशन विल बी लेफ्ट विद मी. Am I right? Yeah. So can I write down here v square is equal to u square plus 2as? लिख दूं मैं इसको? Yeah. v स्क्वायर क्या है जी? vb. v स्क्वायर क्या है? vb. So vb का स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत? Yeah. देखो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान देना. u स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बताओ? What shall I write down for u square? This is the initial velocity, right? Can I write 0 square? Can I write 0 square? 2. बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है. ऊपर से नीचे. So shall I take g or minus g? Minus G. माइनस नहीं, प्लस जी लेंगे. जब नीचे से ऊपर जाता हाँ. था Yeah. प्लस जी. And what is the distance traveled by him? What is distance traveled by him? X. So X. Yeah. Can you see that? इसको ये समझने में दिक्कत आई क्या कुछ आपको? हेलो हेलो. Can you hear me? Yes, I can hear you. I'm asking, do you facing any problem to understand this part? No. I got. Okay. So from here, can I say VB square is equals to 2gx? Can I say that? Yeah. So can I say here VB is equals to root 2gx? बोल सकते हैं? Yeah. तो मुझे मिल गया वैल्यू. VB का क्या वैल्यू आ गया जी? रूट अंडर 2gx. कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं. Can you tell me now what is the kinetic energy at B point? B point. Half mv. So there's a lot of disturbance from your background. Yes, some worship is going on. It will take only 5 minutes more. Okay. Yeah. चलो, half mvb square. चलो सॉल्व करो. हाफ m के जगह m पुट कर दिया. vb स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? कैन आई राइट 2gx? Yeah. स्क्वायर कर दिया ऑलरेडी, राइट? देखो vb स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? 2gx. कैन यू सी दैट? Yeah. सॉल्व करो. कैंसल. Is it equals to how much?
mgx, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, No. तो काइनेटिक एनर्जी देखो बीच पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, आप समझ में आया आपको? Yeah. कैन यू टेल मी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एम जी, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड? H. हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बी पॉइंट पे भी एच रहेगा? B. नहीं, मुझे हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बताओ आप इतना तो आपको बताना पड़ेगा मुझे। Height from the ground till where? टिल बी पॉइंट, मैंने लाइन बनाई है, आप देखो। आई एम टॉकिंग ऑन द बी पॉइंट, राइट? Yeah. एक बात बताओ, एग्जांपल लेते हैं, एक बिल्डिंग में 21 फ्लोर है, कितने फ्लोर्स हैं? 21. आप रहते हो ऊपर से 4th फ्लोर नीचे, मतलब टॉप से 4 फ्लोर नीचे, तो आप ग्राउंड से कितने फ्लोर ऊपर में हो? 17. तो यहाँ वही काम करोगे, ऊपर से x डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे आया ना जी ये, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ऊपर है वो? h minus x, simple. Yeah. So what is the height here? h minus x. कोई दिक्कत है क्या? No. Okay, so in the place of a height, can I write mg h minus x? Can I write that? Yeah. So can you solve, can you multiply? So it is mgh minus mgx. Can you say that? Yeah. मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर? What would be the mechanical energy at this point? Potential plus kinetic, right? Yeah. So now you can see I am writing m minus mgx or plus mgx. Plus mgx. Cancel. What is left with me? mgh is left for me. Can you see that? Yeah. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No. तो आपने बी पॉइंट पे क्या क्या निकालना सीखा। देखो ये इसमें ना आप ये नहीं बोल सकते कि सर करना क्या है, आपको सारी चीजें कैलकुलेशन करनी है। मैं इसलिए पूरा इलेबोरेट करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको अगर काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, आपको पोटेंशियल, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर, मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। अब देखो एक चीज यहाँ पर देखो, मेरी बात ध्यान से देखो। कैन यू सी दैट पोटेंशियल एनर्जी में जितना mgx सब्ट्रैक्ट हुआ उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। कैन यू सी दैट? जितना काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हुआ उतना पोटेंशियल एनर्जी में से इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। कैन यू सी दिस पार्ट? देख रहे हो ये? तो ये चीज ध्यान में रखना, अंडरस्टैंड, कि जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। डू यू क्लियर? Any doubt in this? No. Now I am considering C point. Where I am considering? C point. C point मैं consider करता हूँ ऐसे कि C point is half of the building. C point क्या है जी? Half of the building. कोई दिक्कत है यहाँ पे? No. अच्छा, मैं इस फिगर को वापस से ले लूँ, नेक्स्ट पेज में जाना है मुझे। Can I take this figure? Okay, मैं फिगर वापस से ले रहा हूँ, एक मिनट रुक जाना, because I am moving for the next page. मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा। What happened? Okay. Can you see I have taken the picture? Yeah. Okay. Now I am talking about point C. At point C. अब आप मुझे बताओ, ball is in motion or ball is in rest at point C? Point C, where is it? Motion. It is in motion. Correct? Correct? कोई दिक्कत है? No. Okay. What is the velocity at point C? What is the velocity at point C? Velocity at point C. Simple ना, फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दे दिया मैंने। Can you see that? Yeah. तो आप लिख सकते हो VC is equals to √2 times G times G. X की जगह पे क्या लिखोगे? H/2. H/2. तो ये कितना हो जाएगा? √GH हो जाएगा मिडिल पे। Yeah. कोई दिक्कत? No. Okay, so this is coming √GH. कोई प्रॉब्लम है इसमें?
No. कैसे आया ये मालूम चला या नहीं मालूम चला? नहीं Yeah. मालूम चला तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा. No, I got it. Got it? Okay. Yeah. Can you tell me what is the kinetic energy at point C? We know very well half mvc square. तो half mvc square का मतलब क्या हो जाएगा? This will become gh. कोई दिक्कत है? Yeah. No. So can I write down what is the kinetic energy? तो kinetic energy हो गया जी half mgh. कोई दिक्कत है? Yeah. What is potential energy? So potential energy is mass into gravity, and what is the height from the ground? Height from the ground is h by 2. So this value will be also become half mgh. Yeah. Can you see that? Now mechanical energy at C point. Mechanical energy at point C. We can see here it is how much? Kinetic energy at C plus potential energy at C. Half mgh, half mgh. So it is how much? It is equals to mgh. कोई दिक्कत है? No. तो आपको एक चीज बताओ, मैंने ये सारे पॉइंट्स पे क्यों लेके समझाया? Can you see at every point mechanical energy is coming mgh? Is it coming constant? Yeah. B point पे भी mgh आ रहा है और C point पे भी mgh आया था हमको. Can you see? Huh. So mechanical energy is going to be the constant. Understand? But Yeah. how the kinetic energy is changing, how the potential energy is changing, how the velocity you will calculate. और यहाँ पर देखो, जितना potential energy बढ़ा उतना ही जितना potential energy घटा उतना ही potential kinetic energy बढ़ा है ना, right? Yeah. Do you understand this? Yeah. Okay. Fine. Give me a moment, please. Give me a moment. Okay. Do you clear? Yeah. Okay. Fine. मैं काम करता हूँ. तो ये था मैकेनिकल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट. ये क्या था? मैकेनिकल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट. अब मैं इसके बेसिस पे आपको जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो आपको डाउट हो गए थे, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ और उनको करवाता हूँ. रुक जाओ. Just give me a moment, please. Yeah. एक मिनट होल्ड करना. मैं एक एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ. सो गिव मी अ सेकंड प्लीज. Can you see something here? Yeah. अब इसमें मैं जो देखो यहाँ पे at point A kinetic energy कितनी है? At the height, ball is in rest condition. Can you see that? Yeah. And what is the potential energy? 20. अब देखो at B पर potential energy में कितना गिरावट हुआ है? How much? Huh? Potential energy is decreasing by how much? 5. Oh, yeah. So there is an increase of 5. Can you see that? Yeah. Can you see it? Yes, Now, yes, tell me. Yeah, continue. Now you can see again it's going to decrease by 5 here. And that will increase by 5. तो सिंपल सी बात है, जितना पोटेंशियल एनर्जी गिरेगा उतना ही बढ़ेगा. काइनेटिक बढ़ेगा. तो देखो यहाँ पर आकर ये 0 हो जाता है, यहाँ आकर ये 20 हो जाता है. Can you see now? Yeah. Clear है? Yeah. Any problem? Any problem?
No. Okay. Give me a second. So मैं एक चीज आपको यहाँ देता हूँ प्रॉब्लम, आप इसको ना थोड़ा सा ट्राई करो। एक सेकंड होल्ड करना। कहाँ गया क्वेश्चन जी? और मैकेनिकल एनर्जी अगर कोई पूछता है, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। डू यू Yeah. क्लियर अबाउट इट? Yeah. ओके, रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ भाग गया? अरे यार, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? Hmm. क्वेश्चन कहीं भाग गया है, मुझे पकड़ना होगा। वर्क एनर्जी पावर, लास्ट टॉपिक 157 मिल गया। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूं। हाँ, ये ठीक है। गुड, ये भी ठीक है। गिविंग यू वन प्रॉब्लम, ओके? Yeah. और आप इस, ये आपने पहले बनाया हुआ भी है, और अभी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आप इसको वापस एक बार देखो। पिछली बार जैसे तैसे आपने बना लिया होगा शायद। गो फॉर दिस प्रॉब्लम, और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करो। कैन यू रीड दिस? Yeah. गो फॉर इट। Oh, this was like the question there in the thing. हाँ, Okay. This is there in the home. The questions you sent to me. यस।
reading 1960. Okay. Huh? 1960. 1 960. नहीं, तो पूरा गलत बता रहे हो आप. Completely wrong. Can you read the problem? Can you read the problem? A mass of 10 kg is released from the height of 40 meters above the surface Okay. of the earth. Wait. रुक जाओ. Wait. From the statement, if you see here, the mass of 10 kg is released from a height of 40 meter above the surface. मैंने जो ये पढ़ाया था, इसमें क्या पढ़ाया था? मैकेनिकल एनर्जी किसी पॉइंट पे निकालो सेम आता है. मैंने यही पढ़ाया ना आपको. Yeah. पोटेंशियल और काइनेटिक अलग अलग हो सकते हैं, बट द मैकेनिकल एनर्जीज रिमेन सेम फॉर ऑल. करेक्ट? दे आर आस्किंग फॉर मैकेनिकल एनर्जी. दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी. चलो तो एक काम करते हैं हम. दिस इज माय टावर एंड दिस इज द ग्राउंड. कोई दिक्कत है? दिस इज द मास and this is the 40 meters. Here I'm saying point A. Can you hear me? Yeah. Okay. तो बनाना ऐसे चाहिए. At point A, what is the kinetic energy? 0. What is the potential energy? mgh. So m कितना है जी? 10 kg. G की वैल्यू बोल दिया है 10 ले लो. Height is 40. So it's coming 4000 joule. So mechanical energy at the point A will be how much? Mechanical energy at point A will be how much? mgh. Point A, mgh मतलब 4000 ना. Add करो ना इसको. Yeah. 0 plus 4000, that is going to be equals to 4000. Any problem? No. अब मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूं, मैकेनिकल एनर्जी शुड रिमेन सेम. मैकेनिकल एनर्जी जी 4000 ही आना चाहिए. एम आई राइट? Yeah. तो अभी ये पूछते हैं जी, कैलकुलेट द मैकेनिकल एनर्जी व्हेन इट इज 20 मीटर अबव द अर्थ सरफेस, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. करेक्ट? Yeah. बट दे आर आस्किंग, can you hear me? Yeah, sorry, my mom came. Okay, no problem. They're asking what? Calculate the mechanical energy when they at 20 meter above the surface of earth. Matlab where? It will be on the half. It will be on the where? Yeah, half. Half. तो आपको मैंने half का कंडीशन पढ़ाया है. देखो जरा क्या हो जाएगा. हाफ में काइनेटिक हाफ, पोटेंशियल हाफ हो जाएगा. राइट? अगर आपको वो भी नहीं पता, कि जी सर मुझे नहीं पता, मैं भूल गई, मैं याद नहीं रख सकती हूँ इतना, तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन बताया है. क्या जी? तो इस जगह निकालने का ध्यान दो. यहाँ पे कहीं और ध्यान मत दो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं. ठीक है? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच ट्रेवल्ड? This distance is how much traveled? 20. Or this distance is how much? 20. Correct? 20, yeah. I'm talking point B. Yeah. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. Point B पर this is 20. What is the velocity at point B? So root 2 times G times X. X का मतलब 20. Can you write that? Can you write that? यही फॉर्मूला सिखाया ना मैंने. रूट 2gx, यही फॉर्मूला सिखाया था ना मैंने. सो VB कितना हो जाएगा? 40 times 10. VB कितना हो जाएगा? 40 times 10, 400. That is equals to 20. कोई दिक्कत है? नहीं. Kinetic energy at the B point will be how much? Can you calculate please? Half mass VB square. So half mass is 10. VB का मतलब 20 का square. Can you calculate half into 10? 400. Solve it. 200. So it gives me how much? 2000 joule. Can you see that? Yeah. Potential energy at the B point will be what? mgh. So m का मतलब हो गया 10. What is the height for it? What is the height for B point?
20. So I can write 20. Again, it's going to be 2000 joule. So mechanical energy. तो इन्होंने तो जी मैकेनिकल एनर्जी पूछ लिया था. अगर मैं यहाँ होता ना तो मैं पूछता व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट दिस. बात समझ में आई? हाँ या मैं पूछता क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. इन्होंने मैकेनिकल एनर्जी पूरा पूछ लिया तो ये आसान था. तब तो ये आसान था. At point B, that will be what? Kinetic plus potential. That is how much? 2000 plus 2000. That's going to be 4000. तो देखो अब आप पूछोगे सर आपने ऊपर वाला क्यों निकाला. फिर मेरी बात सुनो. ये प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रिक से बनता है. क्या ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता. मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करता. मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करता. क्यों सॉल्व नहीं करता? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कैन यू सी पॉइंट्स आई एम ड्राइंग हियर, कैन यू सी दैट? या किसी भी पॉइंट पे मैं जाऊंगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा. तो अगर वो मुझे बोलेगा कि यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो क्या मैं हर जगह बैठ के मैकेनिकल एनर्जी निकालता क्या? बैठ के नहीं निकालता. मैं सबसे टॉप पर निकालता और वो कहीं की बात करता, कह देता 13.5 पर कितना होगा मैकेनिकल एनर्जी. अरे कुछ नहीं भैया यही है, कहीं भी निकालो सेम आएगा. एम आई राइट? तो ऑब्जेक्टिव में मैं दिमाग नहीं लगाता. मैं सिंपली एक टॉप का निकालता और मैकेनिकल एनर्जी वहां पुट कर देता. डू यू क्लियर? दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव करने का. मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया इसने. क्या पूछ दिया? काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे 20 लिख रखा है. पूछ देगा 5 मीटर एवं. क्या पूछ दिया इसने? 5 मीटर. क्या मैं ये सारा कुछ करने जाऊंगा? नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा. मैं बेवकूफ नहीं हूं. ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में तो आप ऐसे ही लिखोगे. डू यू क्लियर? ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बनाया गया था कि इसमें बच्चे जो हैं वो अपना दिमाग लगाएंगे. ठीक है. अब सपोज दैट क्वेश्चन पूछ लेता है जी कि 20 मीटर पे कितना होगा. तो 20 मीटर इज हाइट है हाफ हाफ. तो मैं सीधा कर दूंगा काइनेटिक एनर्जी हाफ. मतलब 4000 का हाफ कितना हो जाएगा? 4000 का हाफ कितना हो जाएगा? 2000. बन गया सिंपली. मुझे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी? बताओ करनी पड़ी क्या? अब क्वेश्चन पूछता है जी, चलो एक क्वेश्चन और इसमें कि 10 मीटर पे कितना हो जाएगा. 10 मीटर पे कितना हो जाएगा. राइट. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. टोटल पोटेंशियल है यहाँ पर 4000. आई विल यूज द रेड पेन. ओके मैं यहाँ से कैंसिल कर दूं. कैन यू सी मैंने सारा कुछ कैंसिल कर दिया. राइट. ध्यान से मेरी बात को सुनना ध्यान से. कैन यू हियर मी? क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो मैं ये सारा काम नहीं करूंगा. इतनी मेहनत मेरे बस की बात नहीं है. मुझे मालूम है ए पॉइंट पे 4000 जूल होगा. एम आई राइट? एम आई राइट? 10 अगर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है तो मान लो इसको सी पॉइंट में देता हूँ. 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो कितना सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ. कितना होगा या नहीं कितना होगा सी पर पोटेंशियल एनर्जी? 10 is the mass, 10 is the g, height is 10. 1000 हो जाएगा. 1000 तो 1000 यहाँ पे पोटेंशियल है तो यहाँ पे काइनेटिक कितना हो जाना चाहिए? 3000. क्योंकि टोटल 4000 चाहिए मुझे. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड टेक्निक? आपको मैं टेक्निक समझा रहा हूँ. डू यू क्लियर अबाउट द टेक्निक? तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्टिव में. लेकिन अगर सब्जेक्टिव होगा तो मैंने जैसे यहाँ फॉलो किया है आप वैसे फॉलो करके बनाओगे. डू यू क्लियर अबाउट दिस? अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि ये किस पर्पस के लिए होता है, क्यों यूज करते हैं हम. डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट? कंफ्यूजन है तो बोलो, अभी मैं वापस समझाऊंगा. गॉट इट? तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको आप ऑब्जेक्टिव के मदद से सॉल्व करोगे. ठीक है. नॉट एज अ सब्जेक्टिव. आप इसको ऑब्जेक्टिव मानो और क्विकली सॉल्व करने का कोशिश करो. बिकॉज आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हार्डली एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स मिलते हैं. गो फॉर इट. सॉल्व फास्ट.
So 4.5 or something. What answer you told me? 4.5 or something like that. What? How 4.5? Can you explain the reason behind it? Oh yeah. Please explain. They're asking potential energy at that instant. आपको ये निकालना है. Sometime it becomes. क्या हुआ बताओ, क्या दिक्कत हो रही है? हेलो. Wait 1 second. If what would be potential energy at that instant? दैट इंस्टेंट का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 450 जूल है तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये पूछ रहा है 450 क्वेश्चन. only then. नहीं, रॉन्ग. यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग. बराबर बराबर कहाँ मैंने बोला कि बराबर होना चाहिए? मैंने बोला क्या बराबर होना चाहिए? हैव आई सेड दैट? Yes. ये रिलेशन में देखो, इसमें बराबर है क्या? इसमें बराबर है क्या? बट एक चीज देखो, पूरे एग्जाम्पल में किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी इज सेम. कैन यू सी दैट? Yeah. इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी सेम होगी? टोटल मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी. गॉट इट? Yeah. तो इस क्वेश्चन में कैन यू टेल मी, जब बॉडी हमारा सबसे टॉप पे रहेगा, बॉडी हमारा कहाँ रहेगा? सबसे टॉप पे, तो कितनी एनर्जी आएगी यहाँ पे? बोलो कितनी एनर्जी है टॉप पे? 10 kg, 10 मीटर. सो 10 10 10 कितना हो गया? 1000 That's what जूल. I did. Yeah, that's what I did. 1000 जूल. रुको, अब ये ऊपर से नीचे कौन आया? हु इज कमिंग? काइनेटिक एनर्जी इज टेकिंग 450. Yeah. इस पॉइंट पे काइनेटिक 450 हो गया, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा? सो ट्राई टू मेक इट 1000. तो कितना हो जाएगा ये? 550 जूल. 550. अच्छा, okay, I got it. अब समझ आया कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड्स में बन गया क्वेश्चन. ये सेकंड्स में बन गया ये क्वेश्चन या नहीं, बताओ. हाँ. क्लियर है कैसे हुआ? Yeah, I just have to solve questions. I'll get it then. तो एक बार खुद से ट्राई करो. मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कहीं और मत सुनो. क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 1000 जूल तो कहीं भी होगा, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे. टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट विल बी व्हाट? 1000 जूल्स. क्लियर? Yeah. लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जब काइनेटिक एनर्जी 450 है, तो उस पॉइंट पर एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज पोटेंशियल? तो आपको मालूम है टोटल 1000 होना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी 450, तो इतने पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी कि हमको 1000 मिल जाए? सो 550 होगा तभी तो 1000 मिलेगा. Yeah. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. अंडरस्टूड नाउ? और आपके घर में बहुत साउंड. कोई बात नहीं, चलो. कैन यू हियर मी? Yeah, just. ओके, चलो. ये क्लियर है कैसे करेंगे? तो Yeah. यही कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं बताना चाहता था उस वक्त भी. चलो, सो गिविंग यू, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है. ओके ओके, अब क्लियर हो गया ये सारा कुछ या अभी भी कुछ डाउट है इसमें? No, yeah, I got it. Got it? तो मैं ना एक क्वेश्चन और देता हूँ. रुको, कहाँ गया जी क्वेश्चन? गिव मी अ सेकंड. Okay, so can you hear me now? I can hear you. Okay, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ.
इसमें पावर का इस्तेमाल करना है एंड आई थिंक आप कर सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? Work by time. Yes, try to go for it. So work is force into displacement, right? Yes, you are right. और वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी भी तो होता है, Yeah. तो mgh लिख सकते हैं. Yeah, I was gonna do that. I was just making sure I accidentally forgot Okay. for some reason. नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब वो भी ऑप्शंस है. और वर्क Can I इज take इक्वल्स टू, GS 10? Can I take GS हाँ 10? हाँ, yes yes, take it, no problem. Is it 125? Let me check. 125 what? Watts. Watts. Okay, good. Giving other one. Uploading. Go for this question. Go for it fast. Yeah. Sir, they're not given mass or anything else. कुछ भी नहीं है, बात सही है. Of course, the other one takes lesser. Sorry, the first one, yeah, the other one uses greater power. One coolie take 1 minute to raise the box. So the other one, the second one uses more power and energy. Wait, रुक जाओ. Obvious. One coolie take 1 minute to raise a box to a height 2 meter. Another one take 30 seconds for the same job for doing that, right? Okay. Obviously, the time, देखो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है. यहाँ पे देखो time कितना है? Time is decreasing, right? Yeah. तो सिंपल सी बात है, टाइम अगर डिक्रीज कर रहा है तो he will be more powerful, correct? Yeah. Understand? Yeah. Okay. चलो मुझे कुछ और भी क्वेश्चंस देखने दो. Give me a second. Giving one problem to you. Ready? Yeah. Okay. चलो इसको एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास पेजेस
हाँ है, चलो बनाओ आप इसको, Yeah. सॉल्व करो इसको। और आपका वो सब होमवर्क कंप्लीट हुआ? हेलो, The math one. मैथ्स फिजिक्स दोनों वाला, दोनों में ऑब्जेक्टिव दे रखे। Not the whole thing. क्यों? मुझे रिमाइंडर डालना पड़ेगा? No, I'll do it. ओके। और मैंने आपको एक नया होमवर्क भी दे रखा है सर्कल्स में, एक्सरसाइज 11C, राइट? Yeah, I know. तो इतना सारा होमवर्क है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। Yeah. हाँ हेलो, साइंस के हिसाब से बात yes, are you done with this? One. Okay. Oh, oops. So it's 1 lakh. Hmm? It's 1 lakh. Okay. 1 lakh. Yeah. ठीक है। So acceleration आपको मिल गया। Let me also check it. मास इतना है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। They are asking work done, right? Yeah. Working against a resistance of 500 Newton. Okay. So 500 into 10 will become what? एक सेकेंड, सॉरी, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो टाइम नहीं दिया हुआ है। एस की वैल्यू है मेरे पास, सो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, ये 0 है, 2 इंटू ए इंटू 100, तो 400 इज इक्वल्स टू 200 टाइम्स ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2, करेक्ट? सो फोर्स हो जाएगा 500 मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो गया 1000 न्यूटन। कितना हो गया फोर्स? 1000. न्यूटन। लेकिन रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है,
सो एक्चुअल फोर्स कितना हो जाएगा? एक्चुअल फोर्स कितना हो जाएगा? देखो बॉक्स है, बॉक्स में 1000 न्यूटन इधर 500 लगा और इधर में 500 लगा. नेट फोर्स will be how much? I didn't do that right. 500 न्यूटन. नाउ वर्क डन के लिए क्या करेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो Okay, 5 500 lakhs. टाइम्स नहीं 100 Then मीटर है ना. 50,000. 50,000. So 50,000 joules. कोई भी आंसर है क्या? नहीं है. No, so it's a D. We'll go for it. Understand? Yeah. Do you clear? Yeah. Okay, चलो. So we will meet in the next class. आप अपना होमवर्क पूरा करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, सॉल्व हो Yeah, जाएगा. fine. Understand? Yeah, fine. हमें इस जी की जरूरत नहीं थी. Got it? क्यों जरूरत Yeah, I नहीं know थी? I बात समझ didn't आ गया? use it. हाँ, okay, चलो. Okay, bye. Take care. Bye, sir.